What is right to equality? What is right against race, sex, caste, religion? What is right against untouchability? What is self-incrimination? What is double jeopardy? What is right to life, to live with dignity? Hello guys, this is Jolly Tiwari from LawSikho. Today we are going to discuss about the very famous and very important rights of our Indian Constitution. In short, we can say that these are the basic features of the Indian Constitution which cannot be amended easily, as our Constitution is rigid as well as flexible. So, we are going to discuss them in detail. But before discussing that, I would like you all to subscribe to my channel. Just click on the bell button given below. So, let's start with our video. The salient features of Constitution Part 2. So, what is right to equality? What is right to equality and where it has been given? It has been given under Article 14. What does Article 14 say? Article 14 says कि right to equality is equal protection of laws. A very famous rule of law has been given by A.V. Dicey. Rule of law means equal protection of law, equality before law, no arbitrariness or no discrimination. And the third point, individual rights should be protected. So these are the 3 points which Dicey gave, which according to him meant right to equality. So this was right to equality subjected to some exception. अब कुछ exceptions क्या है? Exception है intelligible differentia. अब आप किसी केस में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब हम इससे समझ सकते हैं लाइक कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारी अभी भी एबल नहीं है कि हम इक्वल अभी भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे वो जनरल पब्लिक के इक्वल आ सके. लाइक सोशल बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन, चिल्ड्रन, वो अभी जनरल लाइक दे आर नॉट इक्वल, दे हैव नॉट बीन गिवन लाइक इक्वालिटी बेसिस पे. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब यही है कि सब इक्वल हो जाए. उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी अगर बनाने पड़े कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, तो ये राइट टू इक्वालिटी को एवरेज या इन्फ्रिंज नहीं करेगा. So this was right to equality. Now let's come to Article 15 that talks about right against race, sex, caste or religion. अब आप किसी को लाइक होटल्स, पब्लिक शॉप्स या एनी काइंड ऑफ शॉप या एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय पब्लिक और मेंटेन बाय स्टेट फंड्स, आप किसी को उसके रेस, सेक्स, कास्ट, कलर के बेसिस पे आप किसी को रोक नहीं सकते कि यू कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, सेक्स और कास्ट. सो बट देयर आर exception to this that is in Article 15 subclause 3 and subclause 4. In subclause 3 there are special provisions made for women and children, and in Article 15 subclause 4 there are some special provisions made for socially backward classes like SC, STs, OBCs to bring them to in equal parlance with the general people. सो ये कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. गाइस यू कैन गो थ्रू दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट लाइक मोर कोहेरेंटली, और उससे काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस केस से, एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू. सो नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 16. नाउ आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब अगर आप कहीं पे काम ढूंढने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जेंडर के बेसिस पे या कलर या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में. बट देयर इज एक्सेप्शन ऑल्सो टू दिस अंडर clause 4 of Article 16 for socially backward classes or women. Then there is a very famous case that is called देवा दिसन केस. इस केस में कैरी फॉरवर्ड रूल आया था. कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब अगर रिजर्वेशंस हम दे भी रहे हैं तो वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो अदर क्लासेस ऑफ सोसाइटी को फिर अफेक्ट करने लगेंगे. तो वे इक्वालिटी से ज़्यादा वो दूसरों की राइट इन्फ्रेंच करने लगेंगे अगर ये कैरी फॉरवर्ड रूल हटा दिया गया तो. देन लेट्स कम टू आर्टिकल 17
that is right against untouchability. Now what is right against untouchability? अनटचेबिलिटी इन अ सेंस, पहले के जो सोशल कस्टम्स थे, यूसेजेस थे, कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को अनटचेबल माना गया था, लाइक उनका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, उनको सेम लाइक वो हम अगर यहाँ चेयर पे बैठे हैं तो वो नीचे बैठेंगे, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे तो चीज़ें लाइक कुछ पाप वाप हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें मानी जाती थी और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अनटचेबल माना जाता था. तो वो चीज़ें भी अबॉलिश कर दी गई. ऐसे यूसेजेस एक कस्टम में प्रैक्टिसेस को हटा दिया गया. नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 18. नाउ व्हाट आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट? आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. जैसे खान बहादुर, मुगल पीरियड या राजपूत पीरियड, इन सब पीरियड्स में बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे स्पेसिफिक, लाइक राजा को या डायनेस्टी, काफ़ी टाइटल्स दिए जाते थे. वो चीज़ें अब अबॉलिश कर दी गई हैं अनटिल एंड अनलेस वो टाइटल इज ऑफ एनी मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, लाइक पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये टाइप के टाइटल्स आप दे सकते हो. बट दोज काइंड ऑफ टाइटल्स अगर आपको कोई फॉरेन स्टेट वगैरह कुछ भी दे रहा है तो वो अबॉलिश कर दिए गए. नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 19. Now, what does Article 19 talks about? Article 19 is a very important article, और इसी आर्टिकल को लेते हुए लोग, जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रेंच होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ इसी आर्टिकल का होता है. डेट इज आर्टिकल 19 is about right to freedom, freedom of speech, freedom to move or reside in any part of country, freedom to assemble freely without arms, freedom to practice any profession. Then these are the kind of freedoms that have been given under Article 19 but subjected to some restriction. फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोल दे, आप स्टेट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी डिफेमेटरी बोल रहे हो, या सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री को कुछ भी हैम्पर कर रहा है, और या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको माइंड में रखने चाहिए जब आप अपना ये फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहे हो. So this was Article 19. Now let's come to Article 20. Article 20 talks about in respect of conviction for offences. तो Article 20 subclause 1, Article 20 subclause 2 and subclause 3. These are the three subclauses which are very important in Article 20. The first one talks about ex post facto laws, like retroactive laws. अब ये क्या कहता है, like आपको उस टाइम पे किसी ऑफेंस के लिए सज़ा हो रही है और कुछ टाइम बाद कोई और ऑफेंस पे आपने उस टाइम कमिट किया था, बट उस टाइम पे उसके लिए सज़ा नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उस ऑफेंस को उसके लिए भी सज़ा हो गई. तो ये नहीं होगा एक बार आपको सज़ा हो गई तो बाद में अगर वो चीज़ ऑफेंस बन गई तो उसके लिए आपको फिर से सज़ा हो जाएगी. तो ऐसे कॉन्विक्ट आपको नहीं कर सकते हैं. तो ये आता है आर्टिकल 20 सबक्लॉज 1 के अंदर कि एक बार अगर आपको किसी ऑफेंस के लिए सज़ा मिल चुकी है और बाद में अगर कोई और चीज़ ऑफेंस बन रही है तो आपको बाद में उसके लिए सज़ा नहीं मिल सकती. देन आर्टिकल 20 सबक्लॉज 2 टॉक्स अबाउट डबल जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी मतलब किसी भी ऑफेंस के लिए आप ट्वाइस किसी को सज़ा नहीं दे सकते, नॉट टू बी कॉन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. Then Article 20 subclause 3 talks about self-incrimination. No one can be compelled to be witness against himself. किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते तो क्योंकि वो अपने खिलाफ या अपने अगेंस्ट गवाही दे कोर्ट में, या अपने अगेंस्ट ही वो विटनेस बन जाए. आप उसको फोर्स लाइक विलफुली वो कर रहा है तो अलग बात है, बट फोर्सफुली आप उससे कंपेल नहीं कर सकते हो कि विटनेस ही बन जाए अपने अगेंस्ट. सो दीज वर द 3 आर्टिकल्स वी टॉक्ड अबाउट. Now let's come to last Article 21. That is the very important article क्योंकि इससे बहुत सारे आर्टिकल्स निकल आते हैं. एक आप यही समझो, राइट टू स्पीडी ट्रायल. ये कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये भी एक टाइप का फंडामेंटल राइट ही है जो आर्टिकल 21 से निकला है. दैट इज राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी. राइट टू लाइफ मतलब यही नहीं कि बस आप जी रहे हो, आप जी रहे हो बट विद रिस्पेक्ट टू लिव विद डिग्निटी इज ऑल्सो देयर. तो इससे कई राइट्स भी निकले हुए हैं.
जिनके जो काफ़ी केसेस में बताए गए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो उसके गो थ्रू आप जा सकते हो. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. और इस आर्टिकल, दैट आर्टिकल 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज you must have heard the 2016 verdict of right to privacy, the Puttaswamy case. That is also important from the point of view of this. So this was about the fundamental rights we talked about from article 14 to article 21. सो गाइस, आपको हमारे वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, कुछ नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें. एंड डू लाइक आवर पेज एंड टू ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड kindly tell us on what topics more we can make the video. Thank you and have a nice day.